हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर। इसमें ज्योग्राफी का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें आज हम करेंगे ओशियन सबमरीन रिलीफ एंड वाटर सर्कुलेशन, यानी महासागर अंत समुद्री उच्चवास तथा महासागरीय जल का परिसंचलन। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों को इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे सीबीएसई वाले बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड वाले बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार वाले बोर्ड के बच्चे हों, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा अगर उनके सिलेबस में ये टॉपिक है तो। साथ में ये यूपीएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और एसएससी एग्जाम के बच्चों के लिए भी ये वेरिफ अकाउंट के रूप में रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our most important topic here are effect of the ocean current. There is a most important topic arrive here, effect of the ocean current. What is the effect here? The first effect here is the influence on climate. There is a most important here or influence on the climate. Ocean currents closely influence a distribution of the temperature, pressure, wind and precipitation, which is directly and indirectly influence of economic and society of people, especially those living in the coastal region. And some of the important effect of the ocean current are flowing. There is the most important. Currents move from the warm temperature area to the colder temperature area and vice versa, as they are moved from one place to another, thereby or the attempt of modify the temperature. The temperature of the mass of water affect the temperature of the air above it. Therefore, the oceans current that move from equilateral region to the colder altitude arise their temperature of the air in the area into which it is moves. For example, warm North Antarctica is a draft which is the flow to northward to the West European coastal and help to the keep the coastal air. There is a Great Britain and Norway free of ice in a winter too. The effect of the oceans currents become more clear if you compare to the winter condition of the British Isles with that of the northeast coastal of Canada, situated on the same altitude. Since the northeast is a coastal is Canada come under to the influence of called Labrador current. It's a remain ice bound in during this and the winter time. When the cold and warm currents meet, they produce a mist and fog. There is a most important cold and warm current meet the produce a mist and fog. For example, near Newfoundland is a warm Gulf Stream meet a Labrador current and produce a fog. And they also create a condition for the storm and the hurricanes in the Newfoundland to the typhoon in the Japan are the result of meeting of warm and cold current. There is the most important. And important here, the next point, influence on marine life. There is the most important effect here. The temperature has a great influence on the marine life. It determines its types of flora and fauna. The area where is a warm and cold current meet among there is a most important fishing ground of the world. The ocean's movement in their form of current help in the is a dispersal of marine life. Dispersal is a marine life. There is the most important. And the next here, influence on trade. There is also important ocean current influence the trade. The portal there have rows of the high latitudes
which are affected by the warm currents are ice free and open for trade all the year round. For example, the ports of the northwest Europe remain open throughout the year, while the port of Quebec and the Canada get a frozen in the winter. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, महासागरीय धाराओं के प्रभाव। देखिए महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्या होती है। अगर हम देखें यहाँ पर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहली प्रभाव तो यही आता है, जलवायु पर प्रभाव। देखिए महासागर धाराओं का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है तो पड़ता है क्लाइमेट पे, यानी जलवायु पे। कहते हैं महासागरीय धाराएं जो है तापमान, दाब, वायु और वर्षण के वितरण को नज़दीकों से प्रभावित करती है। तो जनरल सी बात है कि अगर धाराएं होगी, महासागरीय जलवायु होगी तो ये तापमान, दाब, वायु और वर्षण के वितरणों को काफ़ी प्रभावित करेगी, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समाज एवं अर्थव्यवस्था विशेषताएं तटीय प्रदेश में रहने वाले पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सागरीय धाराओं में कुछ प्रमुख जो है प्रभाव इस प्रकार भी देखा जा सकता है। देखा जाए तो जल धाराएं जो है अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से कम तापमान वाले क्षेत्रों की ओर तथा इसके विपरीत कम तापमान क्षेत्रों से अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती रहती है। जब ये धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है, तो ये उन क्षेत्रों के तापमान को काफ़ी प्रभावित भी करती है। किसी भी जल राशि के तापमान का प्रभाव उसके ऊपर की वायु पर सदैव पड़ता ही पड़ता है। और इसी प्रकार जो विषमवर्ती क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों वाले ठंडे क्षेत्रों की ओर बहने वाली जलधाराएं उन क्षेत्रों की वायु के तापमान को काफ़ी बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखिए कहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा उदाहरण भी, क्योंकि उदाहरण से हम ये बात जान जाएंगे कि गर्म उत्तरी अंटार्कटिका अपवाह जो उत्तर की ओर यूरोप से के पश्चिम तट की ओर बहती है, यह ब्रिटेन और नॉर्वे के तट पर जो है शीत ऋतु में भी बर्फ नहीं जमने देती है। अगर देखा जाए तो ब्रिटेन और नॉर्वे के तट पर जो है शीत ऋतु में भी यहाँ पर बर्फ नहीं जमती है। जल धाराओं का जो है जलवायु पर प्रभाव अधिक स्पष्ट हो जाता है तब आप जो है सामान्य जो अक्षांशों पर इस त्रिविटिस द्वीप समूह के शीत ऋतु की तुलना में कनाडा के उत्तरी पूर्वी तट की जो है शीत ऋतु से कर सकते हो। कनाडा का उत्तरी पूर्वी तट जो है लेब्राडोर की ठंडी धाराओं के प्रभाव में आ जाता है और इसलिए यह शीत ऋतु में बर्फ से काफ़ी ढका हुआ नजर आता है, यानी ये बर्फ से जो है पूरी तरह से ढक जाता है। जब ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है तो ये कोहरा उत्पन्न करती है। ये तो आपको पता ही होगा कि कोहरा कैसे बनते हैं। तो कोहरा जो बनने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में जब मिलती है तो कोहरे का निर्माण होती है। उदाहरण के लिए जब गल्फ स्ट्रीम धारा जो न्यूफाउंडलैंड में निकट जो है लेब्राडोर की धाराओं से मिलती है तो कोहरा उत्पन्न होना एक स्वाभाविक बात रहेगा। ये तूफान आने के लिए भी अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। न्यूफाउंडलैंड में जो है हरिकेन और जापान में टाइफून आने का कारण शायद गर्म और ठंडी जो है धाराओं का जो है मिलन भी हो सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सबसे अधिक अगर इन उतार चढ़ाव का सबसे अधिक पड़ता भी है तो मैरीन लाइफ पे पड़ता है, यानी जो है समुद्री जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है ये उतार चढ़ाव की जो है सिचुएशन। कहते हैं तापमान का समुद्री जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये समुद्री वनस्पति एवं जीव जंतुओं के प्रकार को जो है निर्धारित करती है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, वह विश्व के अत्यधिक महत्वपूर्ण जो है मत्स्य ग्रहण क्षेत्र होते हैं। धाराओं के रूप में महासागरीय जल के संचलन के कारण समुद्री जीव जंतु पूरे महासागर में फैल जाते हैं और फैलने से ही जो है उनका बचाव भी हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष व्यापार पर प्रभाव। देखिए कहते हैं अगर हम धाराओं की बात करें, शरद गर्म की बात करें, और ये धाराएं जो होती है कहते हैं सिर्फ ये जीव जंतुओं पर ही प्रभाव नहीं डालते हैं, मैरीन लाइफ पे ही प्रभाव नहीं डालते हैं, ये इंसानों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यानी उनके व्यापार पर काफ़ी प्रभाव डालता है। जलधाराओं का व्यापार पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। उत्तर अक्षांशों में स्थित जो है पत्यानों और बंदरगाहों में जो गर्म जलधाराओं का प्रभाव में होते हैं बर्फ नहीं जमती है वहाँ, यानी देखा जाए तो गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण वहाँ पर बर्फ नहीं जमती है और वहाँ पूरे वर्ष व्यापारिक गतिविधियाँ चलती ही रहती है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम यूरोप के पतन पूरे वर्ष खुले रहते हैं, जबकि कनाडा का क्वेबेक पतन शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ बात
रखता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।